Hello students. Okay, in the last video what we have seen, the last lecture we have seen brightness adjust karo. Okay, in the last video we have seen the exercise rationalize the denominator. Okay, on surds we performed an exercise called as rationalization. Okay, rationalize the denominator or rationalize the surd. The question can be even rationalize the given surds. Okay, we saw, I'll take a short recap. 3 upon root 5, what we did is multiplying numerator and denominator with the given denominator, that is root 5 into root 5. We got 3 root 5 upon 5. Okay, because root 5 into root 5 becomes 5 and 3 into root 5 is 3 root 5. Second, 1 upon root 14 is equal to 1 upon root 14 into root 14 upon root 14 is equal to 1 into root 14 is root 14 and root 14 into root 14 becomes normal 14 number. Okay. Third one we have 5 upon root 7, that is equal to, we can say 5 upon root 7 into root 7 upon root 7. Statement test लिहायचा multiplying numerator and denominator with root 7. Okay, finally we get 5 into root 7 is 5 root 7 and root 7 into root 7 is 7. So final answer 5 root 7 upon 7. Fourth one is 6 upon 9 root 3 is equal to 6 upon 9 root 3 into root 3 upon root 3. Okay, we have to rationalize the denominator, so we have to use only the third part. We don't have to use the entire part. Okay, पूर्ण डिनॉमिनेटर नाही घ्यायचं आहे. यू हॅव टू टेक ओनली द थर्ड पार्ट, कारण आपल्याला रॅशनलाइज करायचं आहे. व्हॉट डू मीन बाय द वर्ड रॅशनलाइज? त्याच्यातला थर्ड एलिमेंट काढून टाकायचं आहे, थर्ड एलिमेंट कन्वर्ट करायचं आपल्याला. ओके, यू ओनली हॅव टू कन्वर्ट द थर्ड एलिमेंट. सो यूज रूट 3, दॅट इज 6 upon 9 root 3 into root 3 upon root 3 is equal to 6 into root 3 6 root 3, 9 into root 3 becomes 3. Okay, so this becomes 9 into 3. 9 3s are 27 and 6 root 3 as it is 6 root 3 upon 27. 3 2s are 6, 3 9s are 27, 2 upon 9. Your final answer is 2 root 3 upon 9. Okay, last one was just the battery got so very much down that this point was not covered completely. 11 upon root 3 is equal to 11 upon root 3 into root 3 upon root 3. That comes to around 11 into root 3 is 11 root 3 and root 3 into root 3 is 3. So this is your final answer, 11 root 3 upon 3. Okay, now with this particular exercise is over, the part of surds, okay, the topic surds is over. Okay, it is not completely over, but now we are going to start with a new topic, that is आता सर्डचा लेवल गेला. ओके, वीडियो गेम खेला है ना मोबाइल के ऊपर, एक लेवल हो गया तो सेकेंड लेवल पे जाने का है. सेकेंड लेवल और हार्ड रहता है. ओके, हियर ऑल्सो नाउ सर्ड्स इज ओवर, वी आर कमिंग टू इंट्रोडक्शन टू बायनॉमियल सर्ड्स. याचे अजून पण स्टेप्स असतात पुढे. ओके, बट इन केस ऑफ युअर 9th स्टँडर्ड सिलेबस इंट्रोडक्शन टू बायनॉमियल सर्ड, सेकंड स्टेपवरच तुमचा सिलेबस इथे सर्ड्समध्ये सिलेबस ओवर है. ओके, अब इससे ज़्यादा अगर तुमको सीखने का है, सर्ड्स टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है एंड यू वांट टू स्टडी सर्ड्स मोर, सो यू कैन टेक एडमिशन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. यू कैन टेक एडमिशन इन साइंस. ओके, साइंस का मैथ्स 1 के अंदर ये आ जाएगा, वापस से सर्ड्स का टॉपिक आएगा. ओके, देयर यू विल नॉट हैव सिंपल सर्ड्स एंड बायनोमियल सर्ड्स, उसमें और ऊपर जाएगा तुम लोग. ट्राइनोमियल सर्ड्स आएगा, ट्राइनोमियल सर्ड्स, पॉलिनोमियल सर्ड्स, बहुत कुछ आने वाला है उसमें. ओके, अगर सर्ड्स का टॉपिक पसंद आया है तो गो विथ साइंस. ओके, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो झेलना तो पड़ेगा. अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है, चुपचाप अकाउंटेंट बन के सीए वगैरह बनना है तो कॉमर्स ले लेने का चुपचाप, नहीं तो आर्ट्स ले लेने का. ओके, हाँ, जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना है दे हैव टू गो फॉर साइंस. चलो, introduction to binomial surd. Now what is a binomial surd? Okay, I've given an example over here. Let's come back to the equation point. When we have equation with only one variable, we call it as monomial. Okay, what do you mean by binomial? There are two different variables, that is x plus y, then we have binomial. Okay, now this is a binomial with different variable. We also have x square plus x is also binomial. Okay, मतलब क्या है, खाली उसका पावर अलग रहना मांगता है. It's not important that the variable will be different, but even if you have a similar variable with different power, it is considered as different variable. So that
बिकम्स अ बायनॉमियल इक्वेशन. बरोबर केलं आहे आपण. हे इक्वेशन्समध्ये आपण 3 वर्षापासून करतो आहे. लास्ट 3 years वी आर डीलिंग विथ इक्वेशन. वी हैव सीन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, सगळं बघितलेलं है अपन. बहुत सारा टाइप देखा है. ओके अभी ये ईयर के अंदर आफ्टर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर लेसन द नेक्स्ट लेसन विल बी पॉलिनोमियल्स. उसमें ऐसा ऐसा इक्वेशन देखेगा तुम लोग जो अभी अभी तक तुम लोगों ने कभी नहीं देखा है. ओके सो दैट इज गोइंग टू बी अ रियली डेंजरस टॉपिक. एंड उसके बाद में नेक्स्ट लेसन इज अगेन गोइंग टू बी रेशियो एंड प्रोपोर्शन विच इज़ द मोस्ट hard topic I can say, which is the most tough lesson of your 9th syllabus entire maths. Okay, ratio and proportion. Polynomials तो easy है फिर भी आ जाएगा. Ratio and proportion is something जिसका last exercise mostly every year every school they skip that because it is not possible for teachers to explain such hard sums to 9th standard level students. Okay, when we'll come to that topic you will automatically understand. मैं सिखा दूंगा, मैं वीडियो भी बना के भेजूंगा, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला. मेरे को ये भी मालूम है बिकॉज वो सम्स एक पेज से चालू होकर दो फुल स्केप खत्म होने के बाद तीसरे पे उसका आंसर आएगा. रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके अभी नहीं है, अभी तो ये तो बहुत ईजी है फिर भी. चलो बायनोमियल सर्ट्स. व्हाट इज अ बायनोमियल सर्ट? बायनोमियल सर्ट इज द सम और डिफरेंस. ओके म्हणजे प्लस आणि मायनस ऑफ टू नंबर्स out of which one is a surd and another is a rational number. okay definition. okay ये इन लोग ने बराबर डेफिनेशन दिया है. सर्ड्स की डेफिनेशन के ऐसा ये रॉन्ग नहीं है. ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है उन लोगों का, टेक्स्ट बुक का, गाइड का. गो विद द सेम डेफिनेशन, नो नीड ऑफ एनीथिंग, नो चेंजेस. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन व्हाट इट इज. ओके नाउ बायनोमियल सर्ड वी सेड इट इज़ अ सम और डिफरेंस. सम म्हणजे प्लस, डिफरेंस म्हणजे माइनस. इतना तो मालूम है. नहीं मालूम है तो 9th में कैसा आया बच्चा लोग? ये हम लोग ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा था. ऐड आणि सब्ट्रैक्ट, सम आणि डिफरेंस. ओके ये टर्म हम लोग को इंट्रोड्यूस हुआ था 3rd में, लेकिन हम लोग करते तो ये फर्स्ट और केजी से आ रहा है. हम लोग 1+1 1+2 बराबर. आपली तनू करत होती सीनियर केजी मध्ये. यू ऑल नो कितना चॉकलेट लिया है उसने मेरे से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. बराबर है. चलो अभी मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तुम लोग को याद दिलाना पड़ेगा. तुम्हारा होमवर्क का मेरे को ये नहीं आ रहा है, मैसेजेस नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है. बाहुबली स्टिक के ना मेरे को अभी जाना पड़ेगा चेंबूर में. बाहुबली स्टिक का फ़ोटो खींच के भेजना पड़ेगा तुम लोग को, सो दैट तुम्हारा सब दिमाग में रिफ्रेश हो जाए जूना आइडियाज़, और तुम लोग सिंसियरली अपना काम करना चालू करे. तुम्हें विसरले बाहुबली स्टिक. चलो बायनोमियल का डेफिनेशन. बायनोमियल इज आ two numbers is a sum or difference of two numbers such that one is a rational number and another is a surd. Okay now the first example is, मतलब डेफिनेशन उन लोग ने दिया है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट एक सर्ड आणि एक रैशनल नंबर असेल. इफ यू सी द एग्जाम्पल्स केयरफुली. ओके वी हैव द फर्स्ट नंबर √5 plus √3 out of which √5 is a surd, √3 is a surd. Okay both the numbers can be surd. Then we have second example as 2 minus √5 out of which 2 is a rational number. Okay 2 is a rational number. Now you will think 2 is a whole number, 2 is an integer, 2 can be a natural number. Okay but 2 la sir, why sir is saying 2 is a rational number? Because rational number म्हणजे काय? Rational number is a number which is expressed in the form of P upon Q, fraction म्हणजे. Okay but when I am saying 2 is a rational number and √5 is a surd, we know already. So one is a rational number, one is a surd, so this is a binomial surd. Okay next one I'll come to that why I am calling this as a rational number. Okay first third example भी ख़त्म कर लेते हैं हम लोग. Let's finish the point. The third example is 5 minus 2√11. Now we have 5 is again a rational number minus 2 is a rational number into √11. Any number multiplying with a surd becomes a surd. We have seen in the property of surds, we have seen in the property of irrational numbers, rational numbers. बराबर. You remember or you don't remember? अख्खा पेज भरून प्रॉपर्टीज केले होते आपण. irrational number plus rational number is equal to irrational number. Rational number minus irrational number becomes irrational number. Rational number into irrational number becomes irrational. Rational divided by irrational again becomes irrational. बरोबर.
Same like plus and minus becomes minus, minus and plus becomes minus, minus into minus becomes plus, and plus into plus becomes remains as plus only. Okay, so now what we are doing is, okay, one thing, why I am calling 2 and 5 as a rational number. Okay, even if this is not a rational number, if any number which is given, say 2 or 5, if I say this is a rational number, in your brain you should read it this way, 2 upon 1 and 5 upon 1 हो गया अभी rational number. Does it make any difference to the value of the number? No. Okay, that is the reason why we are calling this as rational number in the example. Okay, where root 5, root 3 and root 11 are quadratic surds. Okay, here this is a quadratic surd. If you multiply a rational number to a surd, the product becomes a surd. The entire product is a surd. So 2 root 11 is a surd. Okay, and why we can say root of 11 is a surd? Because 11 is a prime number, 5 is a prime number, 3 is a prime number. To get the square root, we need to break the number into 2 equal half. Okay, 2 equal part, which actually the product of such number has to become that number. Okay, म्हणजे 2 equal factors मध्ये त्यांना break करायचं आहे. But prime numbers cannot be broken into any factor. बरोबर, we know that prime number has no factors other than 1 and itself. So therefore we can say root 11 is a surd. When surd multiplied with any natural number, rational number or whole number, any kind of number multiplied with surd, it will give you a product which is a surd. Okay, explanation clear है? ये सब समझ में आया? बाइनोमियल सर्ड यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ऑलरेडी 12 मिनट का वीडियो हो चुका है, रिपीट नहीं कर सकता हूँ, इसको रिवाइंड करके देखो वापस से. ओके, दैट्स द बेस्ट वे. So in the same equation, same examples, we have root 5, root 3, root 11 are quadratic surds and 2 and 5 are rational numbers which are non-zero. Okay, non-zero ज़रूरी है. अगर वो rational number 0 रहेगा तो it becomes meaningless. If 0 into root 7, it will again give you 0. Okay, surd कितना भी खतरनाक नंबर है, सबका प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, लेकिन 0 इतना खतरनाक है कि वो सर्ड्स को भी 0 कर देता है. ओके, तो अपने क्लास में जो बच्चा 0 लेता रहेगा या फेलियर बच्चा रहेगा, ऐसा बच्चे से दोस्ती नहीं करना. बराबर. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गिवन यू एग्जांपल? ऑलवेज मेक फ्रेंडशिप विद द स्कॉलर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, बिकॉज इफ़ यू स्टे विद स्कॉलर्स यू विल ऑटोमेटिकली बिकम स्कॉलर. फेलियर के साथ रहेगा तो फेलियर ही बनेगा. आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुलक कार्ट एंड अ हॉर्स कार्ट. बैलगाड़ी के ऊपर जो चलाने वाला ड्राइवर बैठा रहता है, उसका जो भी बैलगाड़ी का ड्राइवर रहता है, क्या बोलते हैं उसका, फॉरगेट अबाउट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन एक बैलगाड़ी के ऊपर जो आदमी बैलगाड़ी चला रहा है, हैव यू सीन हिम एनी टाइम? वो भी बैल के ऐसा झुक के बैठा रहता है. बरोबर. वो उसके मतलब बैल में और उसमें एकदम समानता दिखती है. he will walk like a cow or a bull, or he will talk like a cow. एक्टिवनेस नहीं रहता है उसके अंदर. एट द सेम टाइम यू सी समवन हु इज़ राइडिंग अ हॉर्स कार्ट. ओके, घोड़े के ऊपर देखा है, घोड़ा गाड़ी के ऊपर देखा है, गांव साइड में देखा रहेगा ना. भले घोड़ा गाड़ी है वो, लेकिन आदमी खड़ा ऐसा रुबाब से रहता है जैसा मर्सिडीज़ के छत पे खड़ा रह के जा रहा है. वो रुबाब क्यों आता है उसके अंदर? डिफरेंस क्या है बुलक कार्ट पे बैठे हुए आदमी में और हॉर्स कार्ट में बैठे हुए आदमी में? बिकॉज हॉर्स इज़ एन एनिमल ऑफ प्राइड. हॉर्स चलता अकड़ में है, रहता अकड़ में है, तो उसके साथ रहते रहते वो हॉर्स कार्ट राइडर जो है उसके अंदर भी वो एटीट्यूड आ जाता है, वो अकड़ के ही रहेगा. बरोबर. नोटिस करो, कभी बैलगाड़ी के ऊपर बैठा हुआ आदमी बैल जैसा बैठा रहता है, हॉर्स कार्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी अकड़ में बैठता है, घोड़े के जैसा. ओके, सो दिस इज़ अ लिटिल एग्जाम्पल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी केयरफुली. और अभी तो 2 ही साल बचा है तुम लोग को तुम्हारा करियर डिसाइड करने के लिए. ओके, 10th में यू चूज़ सम गुड फ्रेंड्स इन योर 9th स्टैंडर्ड इटसेल्फ, सो दैट 10th तक तुम लोग भी स्कॉलर हो जाएंगे उनके साथ रहते रहते हुए, एंड ऑटोमेटिकली बराबर ऑटोमेटिकली तुम लोग एसएससी में अच्छा मार्क्स लेगा. वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल ऑल माई स्टूडेंट्स दैट इन 9th, ओके, डेवलप ए हैबिट ऑफ यूज़ एनी वन सिंगल ब्रांड पेन. कोई भी एक ही ब्रांड का बॉल पेन यूज़ करो.
जेल पेन्स नॉट अलाउड इन योर एसएससी एग्जाम, सो डोंट गो फॉर जेल पेन। अभी से बॉल पेन की आदत डालो या फाउंटेन पेन की आदत डालो, ओके। और उस पेन को, उस ब्रांड को, उस पर्टिकुलर पेन को परफेक्टली कायम रखो, बिकॉज एसएससी का पेपर्स के अंदर एट द टाइम ऑफ पेपर हम लोग क्या सोचते हैं, अरे चल पेपर नया पेन से लिखेगा, बट लेकिन पेन चेंज होने के बाद इट अफेक्ट्स द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ योर हैंड राइटिंग, ओके। मतलब जो क्वेश्चन पेपर तुम अगर 2 घंटे में सॉल्व करने वाले हो बाय चेंजिंग द पेन, इट विल ऑटोमेटिकली टेक 2.5 और 2 hours 45 minutes एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बढ़ने ही वाला है वो, कम नहीं होने वाला है, ओके। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अभी से कोई एक पर्टिकुलर पेन जो आसानी से मिल जाता है कहीं भी, कोई ऐसा ब्रांड जो कई साल से चल रहा है, ऐसा पकड़ लो, ओके। अगर तुम्हारा 10th आते आते तक वो कंपनी ने वो ब्रांड बंद कर दिया या वो डिज़ाइन बंद कर दिया तो फिर तुम्हारा नसीब ही ख़राब है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, बराबर। ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। बायनोमियल सर्च समजायला आलं, ओके। इन द स्टार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर वीडियो I once again revise this, rationalizing the denominator. Now this is something which we have to learn in the binomial surd. Here what we took the denominator and we multiplied it directly with the numerator and denominator to rationalize the given surd. But in case of binomial surd it is not possible, okay, because if you multiply it with the same number you will not get your results as required. So in order to rationalize this particular binomial surd, what you always have to do is you have to use the opposite of the given binomial surd. For example, let's say 1 upon root x minus root y. To rationalize this particular denominator, what we will do is we will use the ulta. Root x minus root y, we will use root x plus root y and multiply it with the numerator and denominator. Why? Because root x minus root y into root x plus root y, you get this a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So root x minus root y and root x plus root y, when you multiply this you will automatically get x minus y. So means rationalizing का main क्या है factor, what is the main idea about rationalization? Rationalization का main idea ये है कि you have to remove the root sign and convert the surd into normal numbers or a rational number, okay. So which can be done only by using the ulta pair. x plus y है तो x minus y रहेगा, अगर x minus y है तो x plus y रहेगा। रूट बोलना भूल गया हूँ, रूट अपनी तरफ से दिमाग में ऐड कर लो। रूट x minus रूट y रहेगा तो you will use the ulta root x plus root y for rationalization, okay. And root x plus root y रहेगा तो you will use root x minus root y ulta pair for rationalization. The using of this ulta pair, what is this ulta pair called? This pair is called the conjugate pair. ये नाम याद रखो, conjugate. Conjugate नहीं है, gate है, conjugate. Conjugate pair of binomial surd. Okay, if you have a, say for example root 3 plus root 5, this is one pair which is given to you, so its conjugate will be root 3 minus root 5, okay. One example is enough. टेक्स्ट बुक के अंदर 3-4 एग्जाम्पल लिया हुआ है, उतना करने का ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली से एक ये एग्जाम्पल ही पूरा सफिशिएंट है तुमको एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। व्हाट यू आर डूइंग इज x माइनस रूट y है तो उसका कॉन्जुगेट इज रूट x प्लस रूट y. नाउ x कैन बी एनी नंबर, y कैन बी एनी नंबर। तुम अपने हिसाब से डाल के उसका you can make hundreds of example, not an issue, okay. Now how this works, root 3 plus root 5 bracket into bracket root 3 minus root 5, okay. So this becomes a plus b bracket a plus b into bracket a minus b. So what we have a square minus b square. So we have root 3 square minus root 5 square. Root 3 square is 3, root 5 square is 5, 3 minus 5 is minus 2. अरे यार कंपास दे ज़रा, इधर रख लो, okay. So your answer is minus 2, which is a rational number. That means we have removed the brackets and we finally got a rational number, okay. Conjugate pair use करने का ये फ़ायदा है. So when we will be doing rationalization of the denominator in case of binomial surds, we will always use conjugate pair of binomial surds to get the rationalized answer, okay.
If the product of two binomial surd is an rational number, then the two surds are called conjugate pair of binomial surds. वही बात है, हम लोग कॉन्जुगेट यूज़ कर रहे हैं तो वी गेट अ रैशनल नंबर एज एन आंसर. इन लोग ने वही प्रॉपर्टी उल्टा लिखा है. इट इज़ समथिंग लाइक पाइथागोरस के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर. देन दे से इफ़ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल. नहीं तो नॉर्मल क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल दो साइड्स का हम लोग स्क्वायर लेगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाता है बराबर. उसी चीज़ को उल्टा करके हम लोग बोलते हैं ना कॉन्वर्स में, वैसे इधर ये कॉन्वर्स बोला है उन लोग ने. नथिंग मच सीरियस. ओके, आई होप बाइनोमियल सर्ड्स के ऊपर मेरा दिया हुआ जितना भी ये लेक्चर है तुम्हारे दिमाग में भेजा शरीफ में घुस गया रहेगा बराबर है. और नहीं घुसा रहेगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखो, वॉल्यूम अप करो और ईयरफोन लगा के देखो. ऑटोमेटिकली दोनों कान में से जब घुसेगा ना तो भेजे में जाके बराबर सेव हो जाएगा. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 2.4. ओके, यहाँ का रैशनलाइजेशन देख लो कैसा था, एक बार फोटो से देख के समझ में आ जाएगा. रैशनलाइजेशन ऑफ बाइनोमियल सर्ड्स देख लो क्या है, किस तरीके से है, कैसा दिख रहा है, डिज़ाइन अच्छा है ना. हाँ, तो ये समझने के लिए उतना ही ज़्यादा दिमाग भी लगेगा. बाइनोमियल सर्ड्स कॉन्जुगेट पेयर दिमाग में घुसा लो, बिकॉज व्हेन वी डू एक्सरसाइज 2.4 ऑटोमेटिकली वो बहुत टाइम लगने वाला है. ये वीडियो 22 मिनट्स का हो गया है. चलो, विल एंड दिस वीडियो हियर एंड विल स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 2.4 इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.